یہ نجات کا کلمہ ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بہن کائنات رحمت آئیں گے اور دوسرا کلمہ پیش کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل، اس کا 23 باب اور 43 آیت میں لکھا ہے، خداوند کے پاک کلام میں مرسوم ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ دوسرا کلمہ ہے اور یہ نجات کا کلمہ ہے۔ دوسرے کلمے جو صلیب پر سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام زبان مبارک سے نکلا، ایک ڈاکو سے کہا گیا تھا جو صلیب پر مسیح کے ساتھ تھا۔ مسیح خداوند کے ساتھ 2 ڈاکو کو مصلوب کیے گئے تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ یہ 2 ڈاکو کا ذکر کیا گیا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیے گئے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں جو تھے وہ مجرم تھے اور دونوں نے جرم کیا تھا جس کے باعث انہیں سزا دی گئی تھی، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے درمیان میں خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ لیکن ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو تھے یہ سزا کے حقدار تھے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بے قصور سزا دی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر جان دی۔ ایک بائیں طرف تھا اور دوسرا دائیں طرف۔ یہ دونوں مجرم تھے، دونوں نے قانون کے خلاف ورزی کی تھی اور دونوں سزا کے مستحق تھے، مگر دونوں میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ وہ جو دونوں تھے وہ دونوں ہی سزا کے لائق تھے، لیکن ایک جو تھا وہ سنگ دل تھا اور دوسرا جو تھا وہ خدا سے محبت کرنے والا تھا، خدا کے ڈر اور خوف میں رہنے والا تھا، اس پر خدا کی باتوں کا اثر تھا، وہ خدا کے ساتھ محبت کرتا ہوگا جس طرح ہم بھی خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر کسی قسم کا اثر نہیں دیکھتے۔ جو دوسرا ڈاکو تھا اس پر ہم کسی قسم کا اثر نہیں دیکھتے کہ کوئی خدا کا خیال نہیں تھا، کوئی خدا کی باتوں سے یا واقف نہیں ہوگا یا کوئی خدا کے ڈر اور خوف میں نہیں ہوگا، لیکن یہ جو دوسرا تھا وہ خدا سے محبت کرنے والا تھا، وہ خدا کے ڈر اور خوف میں رہنے والا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خدا کی محبت میں رہیں، خدا کے ڈر اور خوف میں رہیں اور خدا کو اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کو قبول کریں۔ اسی طرح ہی یہ جو دونوں مجرم تھے یہ قانونی طور پر سزا کے لائق تھے، لیکن ایک جو تھا وہ سنگ دل تھا اور جو دوسرا تھا وہ خدا سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ ایک بیدار ضمیر کا بیان ہے۔ وہ جو دوسرا ڈاکو تھا وہ بیدار تھا، اس کو خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر زندگی گزارتا تھا، جبکہ ایک ڈاکو کو مسیح تانے سے کہہ رہا ہے۔ جو دوسرا ڈاکو تھا وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو تانا زنی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن جو اس کا ساتھ والا جو ڈاکو ہے وہ اس کو ڈانٹتا ہے، وہ اس سے خفا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم تو اپنی سزا کے حقدار ہیں، لیکن اس نے کوئی جرم نہیں کیا جس کے باعث اسے سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ابتدائی بات جو اس شخص کی زندگی میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کے زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے طور پر خدا سے محبت کرتا تھا، خدا پر ایمان رکھتا تھا، اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، خدا سے محبت کرنی چاہیے اور خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس نے اپنے ساتھی کو اس بات کے لیے مجرم ٹھہرایا، اس نے اپنے ساتھ والے ساتھی کو ڈانٹا، خفا ہوا، غصے ہوا کہ تمہیں اس طرح خداوند کو تانا زنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو اپنے قصوروں کے
बाइस से सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई कसूर नहीं किया जिसके बाइस इन्हें सजा दी जा रही है। के दरमियानी सलीब पर जो लटका हुआ है वो बेकसूर है। जैसे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो दरमियान में लटका हुआ था और दाएं और बाएं जो थे वो दोनों डाकू थे, वो जुर्म के हकदार थे। हो सकता है उन्होंने कत्ल किया हो, उन्होंने कोई जुर्म किया हो या उन्होंने चोरी डाका किया हो, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कोई जुर्म नहीं किया। इसका हाल बिल्कुल साउल की तरह था जो दुख देने वाला और सताने वाला था। जिस तरह के आप जानते हैं साउल के बारे में खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि साउल जो था वो खुदावंद के लोगों को सताता था। तो जब साउल ने उसे पुकारा, कहा आए साउल तो मुझे क्यों सताता है? तो उसने कहा आए खुदावंद मैं तुझे कब सताता हूँ? तो खुदावंद ने उसे जवाब दिया कि जब तू मेरे लोगों को सताता है तो मुझे सताता है। दूसरी बात वो जानता था कि मगर इसके दरमियानी अंदरूनी रोशनी की झलक पाई जाती है। जो दूसरा डाकू था उसको ईमान था, उसका भरोसा था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ फरदौस में जाऊंगा, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने गुनाहों को उसी वक्त उसने माफ़ी मांगी थी और खुदावंद को कहा क्या है खुदावंद जब तक अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद रखना। इसी तरह से ये डाकू अपनी रोशन ज़मीर और की वजह से खुदावंद की बादशाहत का उम्मीदवार था। उसको उम्मीद थी कि जब कि मैं अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है तो अब मैं खुदावंद की बादशाहत में ज़रूर जाऊंगा। इसी तरह हम भी जब अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो हमें भी फिर उम्मीद है कि हम भी ज़रूर खुदावंद की बादशाहत में जाने के वारिस हो जाते हैं। इसके प्यार में नींद की झलक पाई जाती है। इसी तरह वो जो दूसरा डाकू है उसकी जिंदगी में एक नींद की उसे किरण नजर आती है। उसने क्यों किरण नजर आती है कि उसने उसी वक्त अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है। ये डाकू अब गरीबुल मलक है मगर हमेशा की जिंदगी का ख्याल इसके सामने है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब कि उसने उसी वक्त अपने गुनाहों का इकरार कर लिया तो उसको ख्याल, इसकी ज़िंदगी में ख्याल उसके सामने आया कि मैं अब क्या हूँ, बादशाहत में जाने के लायक हूँ। कि इसने किसी मौके पर खुदावंद मसीह के ज़बान से हमेशा की ज़िंदगी के बारे में कुछ सुना होगा। जैसे कि उसने हो सकता है खुदावंद के बहुत से मौजज़ों को सुना हो कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है, अंधों को बेनाई देता है और खास तौर पर बदरू गिरफ्तारों को आज़ाद करता है। कौन? हमारा यीशु मसीह। इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को पहनना चाहिए, उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए, उसके नक्शे कदम पर अमल करना चाहिए और उसके साथ साथ रहकर हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसे ऐसे कैसे मालूम हुआ कि मसीह अपनी बादशाह में जा रहा है? उसे ऐसे मालूम हुआ कि वो जानता था कि ये बादशाह का बादशाह है, ये तबीब आलम है, ये खुदावंद यीशु मसीह है, ये खुदा का बेटा है। इसलिए कि उसने खुदावंद के हो सकता है मौजज़ों को सुना हो, उसकी शोहरत को सुना हो, इसलिए उसे पता था कि मसीह अपनी बादशाहत में जा रहा है। एक अजीब बात इसकी ज़िंदगी में पाई जाती है, यानी उम्मीदवार ईमान। वही बात आ जाती है बार बार कि उसको उसकी ज़िंदगी में एक नींद की किरण थी, उसका ईमान था, उसका भरोसा था, उसका तवक्कुल था कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाह में जाएगा तो मुझे भी ज़रूर अपने साथ लेगा। उसने कहा आए यीशु जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे भी याद रखना। खुदावंद यीशु मसीह से उसने बातचीत की, उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि आए खुदावंद, आए रबी, आए मालिक, जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे भी याद रखना। ये बहुत ही आसान और सादा अल्फाज है,
ये कहने के लिए तो बहुत ही आसान लफ्ज़ है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि उसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा, भरोसा रखा। इसलिए उसने कहा कि आए खुदावंद, जब तक की बादशाह में आए तो मुझे भी याद रखना। और उनमें बहुत बड़ी उम्मीद की झलक पाई जाती है। ये खुदा की मोहब्बत की कहानी है जो खोए हुए इंसानों से की जाती है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज हमसे भी मोहब्बत करता है, बल्कि खोई हुई जिंदगियों को, खोई हुई भेड़ों को, खोए हुए इंसानों से खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत करते हैं। और हमें भी चाहिए कि अपने खुदावंद से मोहब्बत करनी चाहिए। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जब हम भी खुदावंद के नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर खुदावंद हमें भी कहेगा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जैसे कि हम एक दो मिसालें देखते हैं, जैसे कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि दो आदमी खेत में काम कर रहे हैं, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो क्यों छोड़ दिया जाएगा? इसलिए उसकी ज़िंदगी में खुदा की कोई मोहब्बत नहीं है, उसकी ज़िंदगी में खुदा का कोई डर खौफ नहीं है, वो खुदा से दूर है, वो खुदा की बातों से दूर है, खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है। लेकिन जो दूसरा आदमी है वो खुदा से मोहब्बत करता है, वो खुदा से प्यार करता है, खुदा का डर और खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारता है। तो इसलिए खुदा के पाक कलाम में बताया जाता है कि एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। इसी तरह दो औरतें चक्की पीस रही होंगी और एक छोड़ दी जाएगी और दूसरी ले ली जाएगी। वो भी क्यों छोड़ दी जाएगी? तो वो खुदा से मोहब्बत नहीं करती, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करती, खुदा के साथ साथ नहीं चलती। तो मेरे अजीज़ों, हमें भी चाहिए कि खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए, खुदा के हुक्मों पर अमल करना चाहिए, खुदा के साथ साथ चलना चाहिए। तो तब खुदा हमारा हमें जब बुलाएगा तो हम उसकी बादशाही में जाने के वारिस होंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। कोई भी